Next, I have a chartered accountant, a CA, Dr. Aman Chuk, who has addressed over 1 million and 1 million industry professionals and financial advisors across 78 countries, including India, and is a reputed name in the domain of financial markets, portfolio management, and derivatives. Has gained experience while working with PwC, EY, Dubai, GE, and ICICI Bank in varied profiles of investment banking, corporate banking, and whatnot. I mean, it's amazing, and he's been a consultant and trainer to Fortune 500 corporates. His only doctorate on currency derivatives. I think that's a big achievement on something that we chartered accountants usually leave it an option. Derivatives. He's done a doctorate in that. So that's a pleasant thing that we come across. And he's also fondly called as guru of financial markets and father of financial planning, portfolio management, derivatives. He commands over 1.2 million searches over Google with a huge fan following over social media as well. So let's put your hands together to welcome this personality amongst us. Welcome, Amanji. Proud to have you as a chartered accountant amongst us, and someone who's done a doctorate. It's interesting. And now, friends, the highlight of our panel today. One of the more popular faces that we always see and we always look up to and we always hear him. And today we have him as a moderator of this panel, this brilliant panel that has been set up today by Lalit Bhatt, Jayesh Bhai together. Yatin Ji Muta. Yatin Muta, I mean, of course, he doesn't need an introduction. He's a familiar face. He's a face every day we look at. He's experienced in business journalism for over a decade. He's currently with Network 18 at CNBC Awaz as associate editor. He's a postgraduate from NMIMS and has worked with Times of India Group and Bloomberg Quint in the past. Welcome, Yatinji, and really it's a privilege to have you with us. Thank you for all of you, all the panel. I request all of you to please join hands and welcome all the panel today with us. And look forward to a power-packed session, just like always with Yatinji and all these brilliant minds that we have today. Over to you, Jayesh Bhai. Thank you, Arpit ji. And indeed, we are fortunate that we have best of the best panelist and moderator today. So without wasting any further time, I would request Yatin Mutaji to kindly carry on with the panel discussion. Please, sir. Sir, your mic is mute. Yatin bhai, we are not able to. Hello. Yatin bhai, maybe request you to maybe quickly log out and log in once again, so that it might just work. Because your speaker looks okay, fine. So in the meantime, to all the participants, I would request all of you to please, whatever questions that you may have, just start pushing through. And what we'll do is we'll try and accumulate all of these questions, and after Yatinji's session, we'll try and throw it to the panel. So any particular discussion that you may have, question that you may have, you may just pass it on the questions blog. And before Yatinji, you could join us, may I now request Alokji, if we can start with you, maybe your opening comments. We'll quickly take some good opening comments from all of the panelists, and once Yatinji join us, we can take up the question answers. So starting with Alokji, maybe if you can quickly give your comments on about the scenario in capital markets and your views about it. So what I would like to start with is with a broader framework that how the international events are affecting our capital markets, and the largest trend that is sort of impacting all markets today is the trend of the US dollar. So the US dollar is in a way, the linchpin of all markets put together. So if you see the history of the US dollar moves, whenever there is a time period where the US dollar is strong, you will see fund outflows from emerging markets. You will see fund flows out of commodities and into US assets.
and whenever the US dollar is weaker, there is fund flow into emerging markets. There's fund flow into non-US foreign markets. There's fund flow into commodities. There's fund flow into gold, and so on and so forth. So there is a very clear inverse relationship between the US dollar index and all these other contra markets. So if we see the history, like in the late 80s, you had the strong dollar in the second half of 80s, and you had a major problem with the Latin American markets. In the 90s, you had a strong dollar again in the second half, and you had a major South Asian crisis. Then again, we've had a dollar run in the last 7, 8, 9 years, and we've had, and if you see in dollar terms, Nifty has gone nowhere in the last 10 years. Of course, nominally we are seeing that Nifty has gone from 6,000 to 12,000 over last 10 or 12 years. But in dollar terms, if you see, then the index has not gone anywhere in the last 10 years. So the larger trend that one needs to see is that where is the US dollar index going? If the dollar is going to be devalued, or dollar is going to be going into a downtrend, only then we'll be able to see emerging markets get the kind of fund flows that are needed for the support, or for risk assets to really do well. So this is my opening remarks on how one should view this entire linkages of various global factors, with the linchpin being the US dollar. Sure. Thank you, Alokji. I think USD is really a benchmark to look at. And now we have Yatin Bhai with us. Once the expert is here, so the common man just quit. Yatin ji, can we just check this? You can hear me, right? Yes. Perfect. Absolutely. Okay. Now let me acknowledge one thing, that I think more than 500 chartered accountants I think would be online, and my wife is also chartered accountant. So आप लोग समझ सकते हैं कि I can now read the minds of all chartered accountants and what they want to know. But that apart, अपने पास आज यहाँ पैनल में तो 3 एक्के हैं, अमित भाई हैं, आलोक है, and Mr. Aman Chugh is also there. And of course, in the past, I have been interacting a lot with Sumit because he usually comes on the television networks, and we find him every day on TV discussing stocks and markets. But since you guys have just had a one round of talk, let me begin by asking Mr. Aman Chugh, because he understands the global perspective well, and the topic for today that we are trying to analyze is the impact of global development in the capital markets, be it oil, dollar, commodity. Everything moves in tandem with each other, and especially during the COVID times and the lockdown times, we have seen a lot of volatility in the market. We have bounced back quite strong, but there are a lot of challenges, and still there is no visibility that even a large corporate can give 2, 3, 4 quarters down the line. So Aman, I just wanted to ask you, what are your thoughts, especially with what China is doing, what US is doing, because these are the 2 major global economies which are playing tug of war with each other, and there is एक type का power grab. दोनों countries एक दूसरे को हराने में लगी हुई हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगी हुई हैं. So what is your understanding of the current situation as to how is it playing? Because it looks like a proxy economic war. Sure. Jai Hind and Namaskar to everyone. So, well, dollar has been the kings ever since Second World War. After World War II, in fact, USD became one of the largest reserve currency. Around 65% of the total reserves is being held in the dollar denomination. And it is also one of the major carrier currency as well. 80% of the FX trade happens in dollars. So because of which it has been able to impose sanctions across globe. तो क्या है ना, यूएस शुरू से 1945 के जो वर्ल्ड वॉर जब खत्म हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, तो उसके बाद पाउंड को रिप्लेस किया एज वन ऑफ द लार्जेस्ट रिजर्व करेंसी. एंड इन एवरी एरा
हर एरा में एक रिजर्व करेंसी हमेशा रहती है। जीबीपी था, पाउंड था 19th सेंचुरी में, फ्रेंच फ्रैंक्स था उससे पहले, डच गिल्डर्स थे इनफैक्ट उससे पहले। इनफैक्ट सिंस रिजर्व करेंसी है डॉलर, तो डॉलर शॉर्टेज फाइनेंशियल मार्केट्स बियर नहीं कर सकती। जैसे ही डॉलर शॉर्टेज आती है तो सारे कंट्री, सारे इकोनॉमीज यूएस की तरफ देखते हैं कि भैया पंप करो, क्योंकि डॉलर नहीं पंप करोगे तो हम सब डूब जाएंगे। एंड दैट्स व्हाई in fact in 2008 crisis as well, while US became a bit late in pumping dollars, and that's why the crisis, Lehman Brothers तक वो जो अगस्त 2008, हालांकि क्राइसिस 2007 सितंबर में यूएस ने ऑलरेडी 5.5% इंटरेस्ट रेट को घटाना शुरू कर दिया था, तो क्राइसिस की इंडिकेशन उसको वहां से आ गई थी, मगर उसको 1 साल लग गए थे डॉलर को पंप करने में। So US pumping is very, very important, and that's why dollar is necessary at every counter. ऑस्ट्रेलिया को भी चाहिए, इंडिया को भी चाहिए, सिंगापुर को भी चाहिए, जापान को भी चाहिए, हर एक को डॉलर चाहिए। मगर 2008 के क्राइसिस में जो यूएस ने पंप किए थे डॉलर्स, उसमें 7 इयर्स लगाए 3.5 to 4 ट्रिलियन डॉलर्स को पंप करने के लिए, जिसको हम QE1 बोलते हैं, QE2 बोलते हैं, QE3 बोलते हैं, क्वांटिटेटिव ईजिंग, यानी कि एक तरह से प्रिंटिंग ऑफ मनी एंड देन पंपिंग इनटू द वर्ल्ड। सो यानी कि 2008 से लेकर 2015 तक यूएस पंप करता रहा बेन बर्नानके साहब के टाइम तक, हु वाज द FOMC चेयरमैन। इसका मतलब ये 8 ईयर से उनको 4 ट्रिलियन डॉलर लग गए पंप करने में, और अभी कोरोना इंपैक्ट के कारण 7 मंथ्स या 8 मंथ्स में 4 ट्रिलियन डॉलर पंप कर दिए। सो दैट मींस दैट स्पीक्स ऑफ द वॉल्यूम एंड स्टिल द मार्केट नीड्स मोर। अब यहां पे द थीम क्या हो रहा है, एक थीम ऐसा प्रकट हो रहा है कि डॉलर DXY, which is the dollar strength, 103 का लेवल था, 103, and it has come back to almost 93 of a level. So इसका मतलब क्या है, डॉलर डीवैल्यू हो रहा है। अब यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिकॉज डॉलर जो डीवैल्यू हो रहा है, विच इज बैड फॉर सर्टेन इकोनॉमीज हु रिलाई ऑन एक्सपोर्ट्स एंड टूरिज्म। यूरोप की बात करें, यूके की बात करें, इवन अलॉट मेनी इकोनॉमीज, अदर इकोनॉमीज लाइक कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, they get hurt जब डॉलर डीवैल्यू होता है, बिकॉज उनकी करेंसी एप्रिशिएट होती है। उनकी करेंसी एप्रिशिएट होती है तो उनका एक्सपोर्ट, उनका टूरिज्म प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। एंड सिमिलरली जो इकोनॉमी डॉलर में रिजर्व्स होल्ड करके बैठे हुए हैं, लाइक जापान है या चाइना है या इंडिया है, हमें भी अगर डॉलर वीक होता है और हमारी करेंसी एप्रिशिएट होती है, हमारा मार्क्ड टू मार्केट नेगेटिव हो जाता है, क्योंकि जो हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं वो हमने हायर लेवल पे खरीद रखे हैं, 74, 75, 76 लेवल्स पे, बाय RBI इंटरवेंशन एक्सेट्रा। अब जो चैलेंज है, जो रीसेंट स्टेटमेंट आई यूएस की तरफ से, जो पॉवल साहब हैं, जो आजकल चेयरपर्सन है FOMC के, उन्होंने ऐसा जिक्र किया कि हम 2022-23 तक, जब तक इन्फ्लेशन 2% एम्प्लॉयमेंट के कारण ना पहुंच जाए, हम इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाएंगे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, क्योंकि आज तक हम हमेशा बात करते थे कि इन्फ्लेशन होगी तो इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे, मगर यहाँ पे उन्होंने बोला कि इन्फ्लेशन अगर एम्प्लॉयमेंट के कारण होगी तो ही हम इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे। अब यहाँ पे इसका मतलब यह है कि अगले 2-3 साल तक हमें डॉलर की डीवैल्यूएशन, डेप्रिसिएशन देखने को दिख सकती है। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये, डॉलर एक तरह से जापानीज येन की तरह कैरी ट्रेड करेंसी हो जाएगा। सो कैरी ट्रेड करेंसी, जस्ट अ ब्रीफ, ग्लोबल वर्ल्ड हेज फंड्स क्या करते हैं, जापानीज येन से बोरो करते थे सिंस 2000 और जाके यूएस मार्केट में लगा देते हैं, जिसके कारण कंटिन्यूसली येन डीवैल्यू होता रहा। हालांकि एक बीच में फेज आया जब 2008 का क्राइसिस आया तो येन 100 के आसपास फिर आ गया, मगर फिर 80 के लेवल, यानी कि येन वेंट बैक टू 80 लेवल, $1 वाज इक्वल टू 80 येन, और वहां से 120 के लेवल चला गया। इसका मतलब क्या है, अब अगर डॉलर से कैरी ट्रेड शुरू होती है, इसका मतलब ये डॉलर जो कि जीरो इंटरेस्ट रेट है, जापान जीरो, यूरो जीरो, पाउंड जीरो, हर जगह अगर जीरो इंटरेस्ट रेट है तो इंटरेस्ट रेट बचे कहां पे, इंडिया में, चाइना में, इंडोनेशिया में। इसका मतलब ये ह्यूज फंड्स फ्लो इज गोना फ्लो फ्रॉम दीज इकोनॉमीज एज अ पार्ट ऑफ कैरी ट्रेड रेजीम। अब इसके कारण चाइना बड़ा स्मार्ट है। चाइना ने क्या किया है, चाइना was the first one to come out of pandemic, but obviously we all know it was the first one to get into the pandemic as well. और अब उस टाइम पे उसका सारे तरह के डाटा अच्छे आ रहे हैं, परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स डाटा, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, एक्सपोर्ट ग्रोथ, और जो Q4 की एक्सपेक्टेशंस भी हैं वो उसकी आ रही है 6% ग्रोथ, एंड जो ईयरली ग्रोथ है 3% की एक्सपेक्टेशन आ रही है। अब यहाँ पे जो ग्लोबल मॉनेटरी ईजिंग हो रही है, फिस्कल स्टिमुलस का पंप हो रहा है, इकोनॉमिक लॉकडाउन बाकी देशों में है, मगर चाइना का करंट अकाउंट सरप्लस जंप कर रहा है 12 ईयर हाई इन द लास्ट क्वार्टर, यानी कि पिछले 12 साल में कभी हमने इतना हाईएस्ट करंट अकाउंट सरप्लस नहीं देखा चाइना का,
एंड चाइना ने एक तरह से एक्सपोर्ट रेजिम को विद कंटिन्यूड युआन डेप्रिसिएशन, पिछले कई सालों से युआन को डेप्रिशिएट करता रहा, डीवैल्यू करता रहा, उसको कई कंट्रीज ने बोलना भी शुरू कर दिया करेंसी मैनिपुलेटर, और अल्टीमेटली एक्सपोर्ट मार्केट को पूरा उसने बैंग ऑन कर लिया। और अब पिछले 2 साल में 2019 से लेकर अब तक यूएस ने 2.25% इंटरेस्ट रेट घटा दिए और चाइना ने सिर्फ 0.35%। वेरी स्मार्ट। तो चाइना ने क्या किया, दोनों इकोनॉमीज में जो इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल हैं वो बढ़ गए हैं। अब दोनों इकोनॉमीज में जो इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल बढ़ गए हैं, 200 बेसिस पॉइंट्स का डिफरेंस है। इसके कारण ह्यूज फंड्स फ्लो इनटू इक्विटी एंड बॉन्ड मार्केट कैन बी एक्सपेक्टेड। और वहां पे चाइना ने एक बड़ा धमाका खेला, वर्ल्ड गवर्नमेंट बॉन्ड इंडेक्स पे अपने सॉवरन बॉन्ड को लिस्ट करवा दिया। ये तो बहुत बड़ा धमाका है, क्योंकि वहां पे जहां पे आज तक सिर्फ यूएस था, जापान था, मेक्सिको था, फ्रांस था, और वहां पे अब चाइना घुस गया है। तो इसका मतलब ये फॉर द नेक्स्ट 10 इयर्स, अब तो सारे ग्लोबल हेज फंड्स बात करने लग गए हैं, फॉर द नेक्स्ट 10 इयर्स ऑन एन एवरेज 100 to 300 बिलियन डॉलर ऑफ फंड्स फ्लो विल हैपन इनटू चाइना। एंड इसका मतलब ये चाइना कंटिन्यूसली, अब आप देखो पिछले 6 महीने से कंटिन्यूसली युआन को एप्रिशिएट होने दे रहा है। आप देख सकते हैं युआन $1 was equal to 7.15 युआन और अब 6.70 पे खड़ा हुआ है। इसका मतलब ये कहीं ना कहीं गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक ऑफ चाइना, जो कि पीपल्स बैंक ऑफ चाइना है, इनके दिमाग में मोर कैपिटल इनफ्लोज के लिए ये एक शिफ्ट ऑफ द गियर कर रहे हैं। पहले युआन को डेप्रिशिएट किया वर्ल्ड के पिछले 20 सालों में ताकि वो एक तरह से एक्सपोर्ट मार्केट में इवॉल्व कर पाए, और अब जो वो क्या कर रहे हैं, अब एक तरह से युआन को एप्रिशिएट कर रहे हैं ताकि मोर इनफ्लोज आए एंड धीरे धीरे करके करेंसी ग्लोबल रिजर्व करेंसी का एक स्टेटस ले लें। ऑलरेडी चाइना में 1.7% से लेकर 2% ऑफ ग्लोबल करेंसी रिजर्व्स कुछ ना कुछ कंट्रीज ने लगाने शुरू कर दिए हैं। मगर अब यहां पे जो इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि जो 2010 से लेकर 2014 में इनफैक्ट जो हुआ और जो अब जो हो रहा है, इसमें डिफरेंस सबसे बड़ा ये है कि लार्ज एसेट मैनेजर्स चाइना में 15% ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमी है चाइना, और वहां पे शेयर ऑफ स्टॉक्स मार्केट में सिर्फ 2%। और अब ग्लोबल फंड मैनेजर्स कह रहे हैं कि शायद ये जो 2% का जो फंड मैनेजमेंट है चाइना के अंदर, वो 10% तक पहुंच सकता है। और ऊपर से अगर बिदेन के चांसेस ब्राइट हो जाएं तो ये चाइना के लिए और एडवांटेजेस हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि ट्रंप हैज बीन एंटी चाइना और बिदेन हैज बीन प्रो चाइना। तो इसके कारण अगर बिदेन के चांसेस ब्राइटर हो जाते हैं तो चाइना के लिए और एडवांटेज। तो यानी कि यहाँ पे जो ग्लोबल थीम दिखती है वो ये, चाइनीज करेंसी पावर, inflows into India and China, global liquidity, सेंट्रल बैंक्स अब डॉलर डेप्रिसिएशन के कारण हटने चाहिए डॉलर रिजर्व से, एंड मे बी गोल्ड साइड पे मोर इन्वेस्टमेंट शुड कम। एंड ऑलरेडी हम देख चुके हैं 2020 एंड 2019 में 700 टन ऑफ गोल्ड हैज बीन बॉट बाय द सेंट्रल बैंक्स ऑफ द वर्ल्ड, एंड पर्टिकुलरली रशिया, चाइना, पोर्टुगल, टर्की, ये 4 कंट्रीज हैं जिन्होंने मैसिव गोल्ड रिजर्व्स पाइल अप करने शुरू कर दिए हैं। यानी कि यहां से शायद एक न्यू एज दिखेगी, और वो एज होगी जहां पे इक्विटीज और गोल्ड दोनों इकट्ठे भागेंगे। आज तक हम ये कहते थे ना कि गोल्ड टूटता है तो इक्विटीज बढ़ती हैं, और अब शायद एक न्यू डाइवर्जन हो रहा है जिसमें गोल्ड और इक्विटीज दोनों, क्योंकि गोल्ड को सेंट्रल बैंक्स बैकिंग खड़ा कर रहे हैं और इक्विटीज को ग्लोबल लिक्विडिटी एंड वीक डॉलर। इसका मतलब ये न्यू ग्लोबल थीम जो शायद 2008 में हमें देखने को नहीं मिला था। अमन जी, थैंक यू फॉर द ओपनिंग कमेंट्स। आपने कहा गोल्ड में शायद हमको रनअप दिखेगा, अगर इक्विटी भागेगा तो गोल्ड भी इस टाइम भागेगा। लेकिन अमित जी, आप आशिका वेल्थ में काफी अल्ट्रा एचएनआईज का पैसा मैनेज करते हैं और वेरियस एसेट क्लास में आप अपनी पकड़ रखते हैं। तो इन्वेस्टर्स को ये जो कोविड रिलेटेड जो चेंजेस आ रहे हैं, जैसे कि अमन साहब ने कहा कि एक टेक्टोनिक शिफ्ट आ रहा है, कोरिलेशंस जो पुराने थे वो शायद आगे चलते हुए स्टैंड नहीं करेंगे, तो ऐसे माहौल में आप किस तरीके से अपना पोर्टफोलियो रीबैलेंस कर रहे हैं और कौन से एसेट्स में और एसेट क्लासेस में रीबैलेंस कर रहे हैं? आई थिंक अमित का फीड हैंग हो गया है। अमित, कैन यू हियर मी? हाँ।
ओके, तो अभी अमित तो नहीं है. Alok, I'll come to you. You specialize a lot in tracking technicals, tracking momentum, tracking the dollar index. आपका क्या रीडिंग है? क्योंकि हमने देखा है कि शॉर्ट टर्म में जो वॉलिटिलिटी थी वो एक ट्रेंड बन गया है, especially in the equity market and commodity market where we have seen a good bounce. तो आगे चल के क्या लगता है कि कैसे मार्केट को ट्रैक करना चाहिए और टेक्निकली किस टाइप का मोमेंटम आपको बनते हुए दिखाई दे रहा है? Actually, अभी right now बड़ा crossroads पे खड़ी है market. I mean, the dollar index tried to go up, it went to 103 and crashed from there. Then it tried to go down. I mean, to around 92, 93 levels. 90, I think it reached 91 also, and then it couldn't sustain those levels. It has come back up, and it is currently at a very critical trend line from the top, and it is right there at that edge. Whether we will, break out upwards, which will mean dollar strength and weaknesses for gold and emerging markets, or the dollar will break down from here, and that may revive all the sentiment towards the emerging markets and gold. So abhi thoda sa confusion hai, and that probably will get resolved in this entire election in the US playing out, and in the stimulus package that the Congress there is log jammed about. तो वहां पर एक बार कुछ क्लैरिटी हो जाए कि मतलब कितना स्टिमुलस यूएस मार्केट में वो दे पा रहे हैं, एंड हु कम्स इन एज द नेक्स्ट प्रेसिडेंट. I think then for the next couple of years the trend will become sort of very clear once these things are out of the way, and by end of this calendar year I think a trend either way will get set up, and the US actually set up in such a way that they are wanting in principle to devalue the dollar, because they want to bring the jobs back, they want to bring the industry back, and be self-sufficient in terms of manufacturing, in terms of raising employment. So, and that can only happen when the dollar index or the dollar is relatively less strong than what it has been. With a lower dollar index, the export from the US can become competitive, and that is what sort of is the problem of the last many decades with the US has been, that because of the very strong dollar, things have moved out of the US in terms of the supply chains, in terms of the manufacturing, in terms of jobs, etc. So I think the establishment wants to lower the dollar, but they are also fighting with the concept of not giving up the reserve currency status. So the two, of course, cannot stay hand in hand together. So some other format of a global reserve currency, of maybe some sort of a SDR basket of currencies or something of that kind, will have to evolve in the next few years, so that the dollar can be taken off the global reserve currency status and can be devalued. तो Amit bhai, I hope now you can hear me well. Yeah, I can hear you now. Can you hear me? Can you see me? I can hear you. So Sure. Unfortunately we lost your feed. I just wanted to build on what Aman said, that a lot of trends are changing. Probably the old correlations will not stay. When you manage a lot of ultra HNI money, you invest across asset classes. What is your strategy now, Amit? What are the asset classes that you are looking at? Have you been changing allocation? Because एक portfolio में हर एक चीज का mix होना बहुत जरूरी है. Equity, commodity, real estate, bonds, a lot of other things. So at present, what is the strategy? How are you, looking at a portfolio, and how are you looking to rebalance your portfolio across asset classes? Sure. So I agree with Aman bhai what he said, that it is going to be an era of deglobalization. I'll put it very straight to you. What we have seen in last 30-40 years, it was World War I. But today you are going to see that world will say that I'm America, I'm Japan, I'm China, I'm India, or whatever country I'm part of. And it is not going to be a World War I. And every country will try to be self-sufficient, all on every activity and of every their manufacturing activity, whether it's a manufacturing activity,
it's a service activity, or whatever business activity they are into. So the world is going to be different, and it is going to be a era of de-dollarization. What I believe, so as Alok Bhai said in the initially, that dollar was at the peak in 1980s, mid of 1980s. So I'll give you exact number. In 1985, the dollar index was close to 150. And today, dollar index is close to 93, 94, whatever it comes to. And I think the direction for the US dollar for next 10 years is going to be on downward side. Because every economy, what we advise, as you said, we advise large family offices, we advise right entry and exit point across the asset class. And when we talk of across the asset class, we talk about the right economies as well. So US had been a right economy in 1981. In that time, if you would have invested, say, if you have invested into $1, then the dollar exchange INR rate was close to 10, and today it is 75. So purely by investing in dollar, you would have made 750% return in last 40 years precisely, right? But today the scenario is going to be different, and there are some new countries and new economies are going to emerge, which are going to challenge the dominance of US dollar in the world. So the world is going to be different, and we have to align our strategies accordingly. That about the global scenario, and it is going to be a complete era of de-dollarization. In fact, I recently shared with the media that by 2035, in next 15 years, I see the dollar may be half of its current value. So I believe the dollar index may be trading around 60 by 2035, because the other emerging countries, other emerging economies will emerge very strong on the platform and will create a different equation in the world in terms of geopolitical situation. Now, by keeping that vision in mind, we are very, very comfortable and very bullish on gold, because what happened in US dollar, that US dollar journey started in 1971 precisely, or I'll say even before that. It started after Bretton Woods in 1940 and 1942 when Bretton Woods Agreement happened. From 1942 till 1971, all currencies in the world were backed up by the gold standards, right? In 1971, the US president has removed that gold standard, and where in place of gold, US dollar became the reserve currency on the world, and against which all currency were packed into. And that dominance was right that moment of time, because US was a dominant economy, right? And they were into least debt those days. Today, if you talk of US debt, I think the entire debt is close to $27 trillion, out of which $4 trillion they have just added in the last 7 months. That is about the liabilities. If I talk about the unfunded liability of the US today, if you go to the US debt clock, it is close to $148 trillion, which is 700% time of US GDP currently. So I'm sure with this pace of debt, next 10 generation of US cannot even pay the debt was they've accumulated. So ultimately, this US dollar is going to go bust some point of time. But as of now, they have a muscle power, and that muscle power is being challenged by China today, right? So it's like it's a human behavior, because economies are also run by humans, right? So it's a human tendency that if I cannot fight with you, I'll show my muscle power, and that's what is happening in US and China today, right? So, and if we say coronavirus is not a virus, it's a planted virus, then of course it's planted in a way where the China want to end the dominance of US dollar. So keeping that view in mind, we are very comfortable on gold. We are very, very bullish on gold, and I will not be surprised if gold crossed $10,000 by 2035. One. Number two, then second scenario, we are comfortable on equities, because today the borrowing of money is free. If I would have invested into 2009 in S&P or Dow Jones, I would have made 500% returns by now. However, my cost of borrowing would not have exceeded 70%, even if I borrowed from the bank, right? Because the 5% is a cost to borrow money. If I take a personal loan in US, my cost of borrowing would not have exceeded 70%. My return would have been 500%, where I need not to produce anything. I need not to hire anyone. I need not to manufacture anyone. I need not to sell anything. It's pure return on my investment, right? So this market is no more an investment market globally. It's a trading market. So keeping that view in mind, we are very comfortable on trading, because the money is much, much cheaper today. And I can borrow money very, very cheap and invest into global stock market, which is running beyond any fundamentals without any reason. Because if I take back to 2004, and I'll take India's example in this case, because we have discussed enough US and China. So I'll take India example. If you go to 2004 Nifty companies, the profit margin on Nifty companies was close to 29%.
and the P was close to 24. I'm talking 2004. And today, the profit margin on three companies is close to 9%, and the P is close to 33. Who will justify this? So no economist can justify this logic. So it's all a liquidity-driven rally, and of course, it is being fueled by the US dollar, as rightly highlighted by the Aman Bhai in the initial of it. The हर एक को dollar चाहिए, dollar चाहिए, dollar चाहिए, और dollar चाहिए. That's what is happening, and the world market is going up. So keeping that view, gold, equities, and to some certain extent real estate as well, we are comfortable, because when we are talking of deglobalization era, what will happen? That people will start investing in their global, their domestic economy, and once the domestic economy start growing in, your GDP will grow, and real estate is a sector which is directly proportionate to your GDP growth, because 2008-9 we had a almost 17% GDP growth rate on nominal rate of interest side. If I take a nominal GDP growth rate, and real estate was growing with leaps and bounds. Today, the nominal GDP growth rate is close to almost 7 to 8%. It's 50% down now. That's where we are seeing the real estate is going down. But once this era of deglobalization emerge in next decade, then real estate will also start performing after 2022. That is the view. So we are bullish on all three asset class, keeping in 10-year view in mind. We are bearish on US dollar. That's clear. So 1981 scenario is gone. We are bearish on US bond, because US bond at 0.5% will not give you much return going forward, because in 1981 the US bond yield was close to 13%. Today it's a 0.5%. So there is hardly anything which you can trade around, right? So bond price will not go up. So US bond we are bearish, US dollar we are bearish. We are bullish on other three asset class. Okay, Amit Bhai seems a real bull on gold, and probably Aman would second that view. तो अभी जो 500-600 मेंबर लाइव है, सब जल्दी से जाके अपनी वाइफ के लिए खरीद ले, और अगर वाइफ नहीं तो गर्लफ्रेंड के लिए क्या बोलते हैं वो, एनिवर्सरी या वैलेंटाइन डे के लिए एक गोल्ड रिंग जरूर। चलिए सुमित से बात करते हैं। सुमित, जो आज मार्केट की हालत है, इकोनॉमी और स्टॉक मार्केट, ये दोनों में बहुत बड़ा डिस्कनेक्ट है। जैसे मेरे में है, मैंने ऊपर जैकेट पहना है, नीचे पैजामा पहना है। तो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अगर ये बात करूं मैं कि ऊपर से स्टॉक मार्केट तो बहुत अच्छा दिखता है, लेकिन ग्राउंड पे हालत खराब है। तो आपका क्या थीसिस है? आपको लगता है कि मार्केट अभी एक बेनिफिट ऑफ डाउट दे रहा है कि शायद एक वैक्सीन आ जाएगी, नॉर्मलाइजेशन बहुत जल्दी हो जाएगा, या ट्रम्प साहब जीत जाएंगे? What all things is the market factoring in? Do you think from here on probably the market will stabilize and the economy will shoot up, or the market will fall and the economy will remain stagnant? Thank you, Mota bhai. Thank you, Yasin ji. Very good evening to you, and very good evening to all the panelists, Amit ji, Aman ji, Alok ji, and apart from this, all the organizers and the attendees of the session. बहुत अच्छा लग रहा है 550-600 लोगों को लाइव देख के, और इतने लोग अटेंड कर रहे हैं, तो अगला आधा एक घंटा मजा आना चाहिए और सबको अच्छा एक्सपीरियंस भी मिलना चाहिए। As far as Yatin ji, your question on disconnect is concerned, आप वाला जो डिस्कनेक्ट है वो तो हमको कैमरा में दिख गया था जब आप झुके थे, तभी तो हमको नजर में आ गया था कि आप शॉर्ट्स में बैठे हैं। क्या है, तो हमारी CNBC की जो टीम है वो ट्वीट भी करते हैं, नीचे शॉर्ट्स पहनी है, ऊपर जैकेट पहना है, क्योंकि सबका वर्क फ्रॉम होम है। इनफैक्ट अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट से भी पूछे, मेजॉरिटी ऑफ वर्किंग फ्रॉम होम, तो अभी घर पे अगर आप फॉर्मल पैंट पहनते हो तो भगवान ही आपको बचाए, आपको कोई साइकोलॉजिस्ट को मिलना पड़ेगा अगर आप फुली ड्रेस्ड होकर घर पे बैठते। No, there is actually a sales number that is going around in terms of the growth in shirt sales versus pant sales. There is a actual difference in the amount of shirts being sold versus the pants being sold. Yeah. Okay. So yes, absolutely right, और सही कहा आपने, वर्क फ्रॉम होम है तो एक थोड़ा सा कंफर्ट जोन रहता है। तो जहां तक मार्केट्स का सवाल है, देखिए मार्केट्स में ऐसा हो रहा है कि जिस दिन से लॉकडाउन का अनाउंसमेंट आया था 23 मार्च 24 मार्च से, तब से ही मार्केट ने बेस बनाया और वहां से एक अच्छी रैली देखने को मिली। वी हैव सीन अ वन डे रैली फ्रॉम 23 मार्च 24 मार्च, एंड पूरी दुनिया, हर कोई ये रैली से बचा नहीं पा रहा है। सबको ऐसा लग रहा है
कि ये ओवरबॉट मार्केट है और किसी के दिमाग में रैली हजम नहीं हो रही है और मार्केट बढ़ा जा रहा है और बढ़े जा रहा है और अब लाइफ टाइम हाई लेवल्स के आसपास आ चुका है। देखिए मुझे इस लॉकडाउन में एक नई चीज जो समझ में आई, थिंग विच आई हैव सीन इज, पहले लोग इक्विटी मार्केट्स में आने के लिए टाइम नहीं निकालते थे, पैसा नहीं निकालते थे, और अपार्ट फ्रॉम दिस देयर रूटीन बिजनेस वाज सो गुड कि वो लोग इस फील्ड में आना ही नहीं चाहते थे। बट इन लास्ट 6 months व्हाट आई हैव अंडरस्टूड, व्हाट आई हैव लर्नड एंड व्हाट आई हैव सीन, लोगों ने पैसा डाला है, जो पुराने लोग हैं जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस there is a data approx 50-60 lakh accounts नए ओपन हुए हैं लास्ट 5-6 महीने में, which is a very very big figure, जिसकी वजह से मार्केट्स में फ्रेश पैसा आया है। सबसे बढ़िया बात ये हुई है कि जो लोग मार्केट्स में आना नहीं चाहते थे बिकॉज देयर अदर बिजनेस और देयर एक्चुअल बिजनेस वाज डूइंग सो वेल कि उनके पास ना तो टाइम होता था और अगर एक्स्ट्रा पैसा होता था दे वर नॉट रेडी टू move that money to some other asset class because they wanted to invest that money in the same asset class so that their asset class can grow or their business can grow। तो ऐसा होने की वजह से पहले पैसा नहीं आ रहा था, जो कि अभी लास्ट 5-6 महीने में वो पैसा मार्केट्स में आया। अच्छा, लॉकडाउन के पहले मार्केट गिर चुका था, तो जब लॉकडाउन अनाउंस हुआ, अच्छा मार्केट्स ऑलवेज डिस्काउंट फ्यूचर्स, तो मार्केट्स में जब लॉकडाउन अनाउंस हुआ तो लोगों ने अज्यूम करना चालू कर दिया, प्रिज्यूम करना चालू कर दिया कि लॉकडाउन के बाद अब नया फेज क्या आएगा। तो नया फेज ये आएगा कि धीरे धीरे करके लॉकडाउन खुलेगा, एक्टिविटीज डेवलप होगी, तो इसके चलते स्मार्ट मनी, स्मार्ट बायर, स्मार्ट लोग स्टॉक्स को बाय करना चालू कर दिए। इतने ज्यादा ओवरसोल्ड हो चुके थे 23 तारीख 24 तारीख मार्च को स्टॉक्स की, जो लोग स्मार्ट थे वो लोग बाय करना चालू कर दिए। एट द सेम टाइम जैसे जैसे लॉकडाउन का फेज स्टार्ट हुआ, अनलॉक 1, अनलॉक 2, अनलॉक 3, अनलॉक 4, अनलॉक 5, इस सारे फेज में एक एक बिजनेस क्लास में इंप्रूवमेंट्स आना स्टार्ट हुए, एक्सपेक्टेशंस बिल्डअप होना स्टार्ट हुआ, ऑप्टिमिज्म होना स्टार्ट हुआ, तो ये पैसा आना स्टार्ट होने लग गया। और अभी तक आप देखो तो लॉकडाउन खुल भी चुका है और नहीं भी खुला है, हम एक मजदार में अटके हुए हैं। बॉम्बे जैसी सिटी में जहाँ पे ट्रेन एक दिन बंद नहीं होती थी, 6 महीने से ट्रेनें बंद पड़ी है और बॉम्बे का काम चल रहा है और नहीं भी चल रहा है। तो इस तरह से इस मार्केट्स में पैसा आने की वजह से ये रैली आते जा रही है, आते जा रही है, आते जा रही है। एक और एक बात जो अमित जी ने कही, अमन जी ने कही, डॉलर इंडेक्स बहुत बड़ी चीज है। वो 103 के लेवल से वो गिरना स्टार्ट हो रहा है। 10% के ऊपर का फॉल पिछले 5 महीने 6 महीने में देखने को मिला है। 23 मार्च को ही डॉलर इंडेक्स का टॉप लगा था और वहां से ये वन वे डाउनफॉल आ रहा है और अभी 93 के आसपास वी हैव सीन दैट डॉलर इंडेक्स इज ट्रेडिंग एट अराउंड 93 लेवल्स। I go with and I support totally अमित जी और अमन जी की हमको भी ऐसा लगता है कि डॉलर इंडेक्स should give a fall from present levels. We are expecting dollar index to move down to 90 or 88 levels. That is the immediate short to medium term target. Longer term time horizon में हो सकता है शायद उससे भी नीचे के लेवल देखने को मिले। तो ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव साइन होता है दूसरे एसेट क्लास के लिए। तो मैं भी इन लोगों के साथ एकदम साथ में हूँ। गोल्ड भी चलेगा, यहाँ से इक्विटीज भी चलेगा और अभी आने वाले दिनों में अगर निफ्टी के लाइफ टाइम हाई लेवल्स ब्रेक होते हैं तो बहुत बड़ा अपसाइड मूव आएगा। क्या ट्रिगर आता है वो देखना है, जैसे जैसे ट्रिगर आएगा लेवल्स बढ़ते जाएंगे। तो शॉर्ट एंड स्वीट में यतीन जी, यहाँ से ये इनवर्स कोरिलेशन और चलने वाला है। लोग सोचेंगे कि मार्केट्स में मंदी आए, मेरे को लगता है कि निफ्टी यहाँ से और रैली करने वाला है। ओवर टू यू। चलिए, तो आप भी मार्केट का एक बुलिश टोन दे रहे हैं और जिस हिसाब से सारा अभी तक पैनल डिस्कशन का आउटकम आया है वो ये आया है। मैं ये कहूंगा कि कंसेंसस सा है कि प्रॉब्ली गोल्ड और इक्विटी एक टैंडम में बढ़ेंगे और बहुत अच्छी बात है क्योंकि इंडिया के लिए मौके पे चौका होगा। अगर गोल्ड भी चलेगा तो जो इंडियन हाउस होल्ड इक्विटी में इन्वेस्ट नहीं करते उनको भी फायदा होगा क्योंकि बहुत सारा गोल्ड हर एक हाउस होल्ड में होता है इंडिया में, तो एक वेल्थ इफेक्ट वो भी देगा। और अगर इक्विटी मार्केट भी चली तो मेरे हिसाब से वो नेले पे दहला होगा। लेकिन डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं और फिर से एक बार अमन साहब को लाते हैं पिक्चर में। अमन जी, हमने ये देखा है कि ओवरऑल बेसिस पे काफी सारी चीजें मैनेजमेंट को एक कॉल लेनी पड़ रही है क्योंकि जब पेंडेमिक हुआ सब लोग पैरालाइज हो गए थे, कंपनीज डिसीजन मेकिंग नहीं कर रही थी, कंसल्टेंट्स के पास भी एक लिमिटेड स्कोप था प्लानिंग करने का। लेकिन आफ्टर दिस नॉर्मलाइजेशन और एक 3-4 महीने का अच्छा फेज पास हो गया है क्योंकि आप इतने बड़े स्पेशलिस्ट हैं
आप MNC के साथ काम कर चुके हैं, आपने इन्वेस्टमेंट बैंकिंग किया है, आपने बैंकिंग किया है इंडिया में, आप काफी सारी फ्रंटलाइन कंपनीज को कंसल्ट भी करते हैं। तो एक कॉमन क्वेश्चन क्या आ रहा है आपको इंडस्ट्री से, और क्या टाइप का सोल्यूशन आप सजेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये जो करंट सिचुएशन है काफी चैलेंजिंग है। तो मैक्रो साइड से जो आपको ट्रेंड दिख रहा है उसके बारे में हमको बताइए, और आपके पास जो यूजुअली कंसल्टेंसी लेने के लिए जब लोग आते हैं तो क्या एक कॉमन सवाल आता है सब लोग के जहन में? आई थिंक जो फेज है ना, जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड हैज रियलाइज्ड दैट मे बी while they were stated in large urban areas, so one shift is they are trying to move to semi-urban places. While I have been listening or interacting with CXOs of large corporates, including Microsoft or even TVS Motors, Maruti, and all those corporates where I interact with as an advisor or a trainer, तो मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि उनका जो माइंडसेट है, सो वन माइंडसेट इज दे आर ट्राइंग टू मूव फ्रॉम द अर्बन टू द सेमी अर्बन लोकेशनल एडवांटेज। सेकंड, गवर्नमेंट ने जो अभी SEZs बनाने की बातचीत शुरू हो गई है, एंड द गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू woo the investors coming from abroad, although हम उतना एनकैश नहीं कर पाए, बट उसके कारण इनफैक्ट a lot many e-commerce companies have also thought and realized कि जो लास्ट माइल डिलीवरी के लिए वेयर हाउसेज सेटअप करने चाहिए। सो जैसे अमित जी बता रहे थे रियल एस्टेट के बारे में, तो मैं यहाँ पे एक वर्ड ऑफ कॉशन के साथ शायद ये भी बताना चाहता हूँ कि रियल एस्टेट में ऐसा ना हो कि कॉमन इन्वेस्टर वो 2 बेडरूम फ्लैट या 3 बेडरूम फ्लैट ले ले, क्योंकि रीजन क्या है कि जैसे हर इश्क का एक समय होता है ना, तो ऐसे हर एसेट क्लास का भी एक समय होता है। तो और हर एसेट क्लास में भी विद इन एसेट क्लास का इन्वेस्टमेंट में भी समय होता है। जैसे कि कभी रियल एस्टेट चलता था, कभी गोल्ड चला, कभी इक्विटी चली। अब विद इन इक्विटी में भी हमेशा टेक महिंद्रा नहीं चलेगा, हमेशा TCS नहीं चलेगा, जैसे नरेश भाई ने भी पहले जिक्र किया। सिमिलरली रियल एस्टेट में भी पहले 2 बेडरूम चलता था, फिर वो 3 बेडरूम चला, फिर वो स्टूडियो अपार्टमेंट चले। तो यानी कि सेकंड जो शिफ्ट आ रहा है, द वेयर हाउसेस साइड पे एक शिफ्ट आ रहा है। तीसरा, a lot many corporates they want to raise money by issuing bonds, क्योंकि अब उनको लग रहा है यार चीपर इंटरेस्ट रेट्स हैं, आज नहीं चौका मारा तो फिर कब मारेंगे, तो अब वो बॉन्ड्स इशू करना चाहते हैं। मगर अब बॉन्ड्स में चैलेंज क्या है, RBI ने रेपो रेट कट करे, डेफिनेटली समझ आता है कि रेट कट करे, मगर रेपो रेट कट तो अल्टीमेटली उसके कारण बॉन्ड यील्ड के ऊपर ज्यादा इंपैक्ट नहीं आया। सो वाइल रेपो रेट कट 5.2 से ऑलमोस्ट 4 ले आए, मगर जो बॉन्ड यील्ड है वो ऑलमोस्ट 6.3 से 6 के करीब आया, वो वापस 6.3 इनफैक्ट पीछे आ भी गया था। अब यहाँ पे कॉर्पोरेट ये चाहता है कि कहीं ना कहीं अगर बॉन्ड मार्केट को हिंदुस्तान की गवर्नमेंट एंड प्लस RBI साथ में कुछ स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स ले आए, तो वो एक धमाका हो सकता है। सो यानी कि इट इज नॉट अबाउट ओनली द आत्मनिर्भर भारत, इट इज नॉट अबाउट द ओनली मेक इन इंडिया भारत, it is about bringing a lot of funds so that the funds accessibility by the corporates become cheap. अब यहाँ पे जब कॉर्पोरेट बॉन्ड में इशू करना चाहता है और वो चाहता है कि आम पब्लिक सब्सक्राइब करे, तो जैसे शेयर मार्केट का इंडेक्स है जहां पे शेयर मार्केट लोग खरीद बेच सकते हैं, बॉन्ड के लिए खरीदने बेचने के लिए कोई मार्केट ही नहीं है। मार्केट है मगर लिक्विड नहीं है, तो वहां पे मेरे को 5 साल 10 साल वेट करना पड़ता है। और जिसने बॉन्ड खरीदा होता है वो भी लॉन्ग टर्म, कभी तो करण अर्जुन आएंगे और वेट करता रहता है बेचारा। तो इसलिए उसको क्या लगता है, उसको लगता है भाई जल्दी आ जाओ करण अर्जुन। तो इसलिए इंडिया को भी यहाँ से एक स्ट्रक्चरल रिफॉर्म लाना पड़ेगा। जैसे चाइना वर्ल्ड गवर्नमेंट बॉन्ड इंडेक्स को लिस्ट कर रहा है, इंडिया को भी अपने गवर्नमेंट सॉवरेन बॉन्ड को इंडेक्स पे लिस्ट लाना पड़ेगा। एक बार वो हो जाता है, उसके कारण इंडियन बॉन्ड मार्केट में लिक्विडिटी आएगी और वहां से कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट इवॉल्व होगा। ये तीसरी एक्सपेक्टेशन है इंडियन कॉर्पोरेट हाउस की। चौथा, हम सब जानते हैं कि MSMEs के ऊपर एक बहुत ज्यादा फोकस है, एंड वहां पे शायद अगर मौका मिलेगा, अगर कोई सवाल होएगा मॉनेटरी पॉलिसी के ऊपर, मैं वहां पे थोड़ा जिक्र कर पाऊंगा कि अभी RBI ने रेपो रेट कट नहीं किया और उसने क्या क्या स्टेटमेंट दी, उसके कारण क्या क्या बुलिश ट्रेंड आए। मगर वहां पे मैं रिस्ट्रिक्ट करते हुए सिर्फ यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ कि जो MSME साइड पे भी हम हिंदुस्तान को आज तक इतने सालों से ना कंजम्पशन ड्रिवन इकोनॉमी चला रहे थे, और हमें शायद अब रियलाइज हो गया कि हमें इन्वेस्टमेंट ड्रिवन इकोनॉमी चलानी पड़ेगी, क्योंकि कंजम्पशन ड्रिवन इकोनॉमी में हम टेक ऑफ नहीं कर सकते, हमें इन्वेस्टमेंट ड्रिवन इकोनॉमी में ही टेक ऑफ हो सकता है। मगर आज अगर हम इन्वेस्टमेंट ड्रिवन इकोनॉमी करेंगे तो कंजम्पशन हिट होती है, और ये भी कॉर्पोरेट्स जो MNCs हैं या जो इंडियन लार्ज कॉर्पोरेट्स हैं, उन्होंने रियलाइज कर लिया है कि हम भी कंजम्पशन बेस पे नहीं चल सकते, सस्टेन नहीं कर सकते। बार बार वही वार्तालाप की 70% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन इज बिटवीन द एज ऑफ 18 to 35, डोमेस्टिक कंजम्पशन, बहुत ज्यादा पैसा वगैरह वगैरह। वो कहते हैं भैया इन्वेस्टमेंट ड्रिवन चाहिए, और इसलिए आपने देखा होगा कि जो यूपी है, बिहार है, हर कोई कहते हैं आओ जी इन्वेस्ट इन यूपी, इन्वेस्ट इन बिहार, इन्वेस्ट इन वेस्ट बंगाल, और वहां पे इन्वेस्टमेंट ड्रिवन का फेज में थोड़ा सा पिंच होएगा हम सारों को, क्योंकि
हमने आज तक कंजम्पशन ड्रिवन ग्रोथ देखी। इन्वेस्टमेंट ड्रिवन में क्या होएगा, समय लगेगा, कंजम्पशन ड्रिवन ग्रोथ थोड़ी हल्की होएगी, हम डर जाएंगे, जीडीपी नंबर्स खराब आ रहे हैं, आईआईपी प्रोडक्शन उतना अच्छा नहीं आ रहा, मगर कहीं ना कहीं अगर वो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, वो लैंड का, वो लेबर का, वो एग्री का जो अभी निकाला, और ये जो फाइनेंशियल सेक्टर का रिफॉर्म्स या रियल एस्टेट के रिफॉर्म्स, अगर ये सही तरीके से सिनर्जाइज कर दिए जाएं, तो आई थिंक the next growth would be investment driven growth, and that is what the MNCs are looking forward. So in a nutshell, three major chunk: one, moving from the urban to a semi urban, क्योंकि उनको लगता है कि सारे लोग अगर बॉम्बे चले जाएंगे तो बॉम्बे के फ्लाईओवर टूट जाएंगे, तो इसलिए लोगों को वहीं पे रोके अपने अपने शहर में कि भैया बॉम्बे मत जाओ, कि फ्लाईओवर भी टूट रहे हैं, वहां पे पोल्यूशन भी बढ़ रही है, एजुकेशन भी महंगी हो रही है, लोग फ्लैट पे फ्लैट ऊपर बढ़ रहे हैं, एनवायरमेंटल पोल्यूशन है वगैरह वगैरह, तो इसलिए खुली हवा में सेमी अर्बन पे फैक्ट्रीज डाली जाए। दूसरा, लास्ट माइल रिजॉर्ट पे, वहां पे वेयर हाउसेस की डेवलपमेंट, एसईजेड्स डेवलपमेंट, यानी कि लोकल एरिया पे एसईजेड्स, एसटीपीआईज। थर्ड, ये सारे कॉर्पोरेट्स को पैसा चाहिए और पैसा बैंक नहीं देना चाहता, या शायद जो भी चैलेंजेस हमने देखे इंडियन बैंकिंग सिस्टम में, तो कॉर्पोरेट कहता है कोई बात नहीं यार, मैं अच्छा काम करूंगा, मैं बॉन्ड से रेस करूंगा, मगर मेरे को बॉन्ड मार्केट अच्छी एस्टेब्लिश कर दो, जिसके लिए इंडिया को ये स्ट्रक्चरल रिफॉर्म गवर्नमेंट बॉन्ड इंडेक्स लिस्ट कराना पड़ेगा। और चौथा, ये जो पूरे स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हैं जिसके बारे में मैं थोड़ा जिक्र कर रहा था, अगर ये सारी चीजें हो जाती हैं तो दैट इज अ रियल एक्सपेक्टेशन ऑफ द एमएनसीज, एंड उनके सहारे एमएसएमईज भी थोड़ा अच्छा हसीन पिक्चर देख पाएंगे। ये तो काफी सारी चीजें आपने हमको दे दी पॉन्डर करने के लिए अमन जी, और देखते हैं क्या होता है। होपफुली ये जो नई गवर्नमेंट है थोड़े कदम उठा रही है, एंड आई होप, जैसे कि आपने कहा, कि वो अगर सिनर्जाइज हो जाए और इन्वेस्टमेंट साइकिल एक बड़ा शुरू हो जाए तो हमको लॉन्गर टर्म में बेनिफिट मिलेगा। लेकिन आलोक, आपसे बात करते हैं, क्योंकि मैं आपको अक्सर देखता हूँ ट्विटर पे, आप काफी सारे ट्रेंड्स और टेक्निकल्स की बातें करते हैं, तो व्हाट आर द काइंड ऑफ ट्रेंड्स दैट यू आर पिकिंग अप इन द इंडियन कैपिटल मार्केट्स? डू यू थिंक फ्रॉम हियर ऑन वी कैन हैव अ मीनिंगफुल रैली in equities, or would you prefer the dollar index and take a cue on commodities and metal stocks? So from a trend perspective, the trend is definitely very strong in most of the markets that you talked about. I mean, whether it is equity, whether it is gold, whether it is a downward trend in base commodities. So like if you see copper, if you see even agri commodities, wheat, I mean sugar, इनमें कोई खास अप ट्रेंड नहीं है, लेकिन जो आपकी एसेट क्लासेस हैं, इक्विटी हो गई आपकी, प्रेशियस मेटल्स हो गया, उसके अंदर आपको स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड डेफिनेटली नजर आ रहे हैं। तो इट इज एज अदर पैनलिस्ट हैव राइटली पॉइंटेड आउट, इट इज एंटायरली a liquidity driven market, and one should not sort of think that that is a meaningless point. I mean, the world is changed. The world has changed from being value oriented, and that anchor is gone now. I mean, when you have interest rates at zero, you have no anchor left in the world. जो आपका कैपएम मॉडल होता है फाइनेंस में, वो that has gone for a toss. And if you do like a reverse net present value of cash flows, और उसमें इंटरेस्ट रेट आप जीरो रखेंगे, तो टेक्निकली आप इंफिनिटी पे पहुंच गए स्टॉक प्राइस में. So there is absolutely no bar on where you can reach. I mean, you are today at 31 times price earnings. You could be at 50 times tomorrow, and nobody can say why 31 or why 50. So the world has changed. Our benchmarks have changed, and we basically cannot. We are in a phase where it is relative to each other. So one stock relative to this. So Infosys relative to TCS, where they are standing in terms of absolute value, that has become meaningless. तो अब निफ्टी चल रहा है, तो अब निफ्टी की अभी relative है relative to the previous high. That's the only relativity, or the recent low. That is the only relativity which matters today. अब वो 12,000 पे कितनी अर्निंग्स है, वो that is already out of the window. So with like Amanji was rightly pointing out that the global monetary base moved from 1 trillion to about 3 trillion during the great financial crisis, and then recently from 4 to 7 trillion. And if the US is going to have a $3-4 trillion deficit every year,
the kind of monetary base that is building up. तो अगर डॉलर टर्म्स में वो 7 से 11 ट्रिलियन पे अगर जाएंगे अपने बेस में, to prevent crazy appreciation of Indian rupee, the Indian monetary base will have to expand equally. And when that expands equally, or maybe little less if required, it will create a huge sort of influx of lower cost capital in the country. तो ये जो इंटरेस्ट रेट का डिफरेंशियल है, ये ज्यादा दिन रह नहीं सकता है. अगर वहां 0% है और यहाँ 5% है, और अगर हम 5% डेप्रिशिएट नहीं कर रहे हर साल, तो आर्बिट्राइजर बीच में आके they will basically equalize that. So we will either have a lot of capital, cheap capital coming through, and we will basically need to control our currency from appreciating too much, and control our inflation also, because हमारे को जैसे ही थोड़ी सी cheap capital मिलनी शुरू हो जाएगी, हमारा inflation out of control होना शुरू हो जाएगा. So all the factors are pointing towards upward side in terms of liquidity flow. There is no current focus on how this liquidity tap can be closed. It will only remain open for next many years, and valuations will have no role to play. So, I mean, from my personal perspective, I do like momentum investing. उसके अंदर valuation का कोई role नहीं होता है. उसके अंदर basically we are looking at relative positioning of one stock versus other, one stock versus index, so on and so forth. So gradually आप देखोगे कि a lot of value funds even in the US are beginning to close down. कल परसों ही कोई एक बहुत बड़े फंड का there was a newsletter that after 10 years of having little returns, they are having to close down. And अभी आपने देखा मोमेंटम में अभी UTI ने नया म्यूचुअल फंड लॉन्च कर रहे हैं, मोमेंटम इंडेक्स. निफ्टी NSE has launched a new momentum index itself. So everybody is moving towards momentum because they are realizing कि वैल्यू के साथ रह के अभी कोई पॉइंट नहीं रह गया. It is going to be a different world, and you will have to play this sort of semi-trading game in the investing world. I mean, so you'll have to have lesser focus on the traditional ratios and more focus on the relative sort of where you stand, which bus is going faster than these other ones. So that is where things are, and so things are looking good for equity. Things are looking good for gold for me. And if the dollar index drops, as other panelists have pointed out, then this should continue. Okay, आलोक. नक्शल में आलोक भाई ये बोलना चाहते हैं, गधों में घोड़ा ढूंढना है. That's right. जो जल्दी से भागे और जल्दी से आपको पैसे कमा के दे. तो ये तो खैर बात हुई मोमेंटम की. अमित, I would like to come to you. कोविड में हमने ये देखा है कि मार्केट ने लॉकडाउन के टाइम एक बॉटम किया, एंड फ्रॉम देयर वी आर लुकिंग एट अ वेरी गुड अप ट्रेंड. मोस्ट ऑफ द निफ्टी 50 कंपनीज स्पेशली इन द प्राइवेट सेक्टर हैव डन रियली वेल इन टर्म्स ऑफ जनरेटिंग रिटर्न्स. बट यहाँ से आपको क्या लगता है कोविड में सबसे बेस्ट आइडिया क्या होगा? कौन सा शेयर में कल जाके खरीद लूं? आप मुझे बताइए. क्या आप मुझे बताइए कि कौन सा टॉप डाउन या बॉटम अप या सेक्टर या ट्रेंड आपने देखा है जहां पैसे लगाने चाहिए? क्योंकि मार्केट में अभी भी ये कंफ्यूजन है कि क्या मैं रिलायंस खरीदूं, स्टॉक 900 वाला 2300 हो गया है, क्या मैं HDFC बैंक खरीदूं जो लोअर लेवल से डबल हो गया है. there is a lot of confusion because things have run up and people are left out. हमने पिछले 3 महीने में ये भी देखा है कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में फ्लो भी मॉडरेट हुआ है. लोग कहते हैं रॉबिनहुड इन्वेस्टर्स डायरेक्टली पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं स्टॉक मार्केट में, or probably in anticipation of a salary cut or anticipation of a slowdown, people are saving more with themselves and investing less. तो मुझे नहीं पता क्या ट्रेंड है इंडिविजुअल मनी फ्लो का, लेकिन स्टॉक्स जो भाग गए हैं, सेक्टर्स जो भाग गए हैं, वहां पे आपको लगता है कोई ऐसी चीज जो यहाँ से मोमेंटम हमें आती हुई दिखाई दे? देखिए, अभी स्टॉक्स जो है 23 मार्च के लो से अभी काफी ऊपर है, ये हम सब जानते हैं. हमने 23 मार्च को जो अपना मीडिया एडवाइजरी जारी किया था अपने इन्वेस्टर्स को, जो गूगल पे भी अवेलेबल है, हमने 3 सेक्टर्स पे हम बहुत बुलिश थे. सबसे पहला था आईटी सेक्टर, दूसरा था टेलीकॉम, तीसरा था पर्सनल मोबिलिटी सेक्टर, एंड फोर्थ था फार्मा. आई थिंक ये चारों सेक्टर अभी कम से कम 40 से लेके और 90% रिटर्न दे चुके हैं सेक्टोरल लेवल. फॉरगेट अबाउट द स्टॉक्स. स्टॉक्स जो 2 गुना 3 गुना 4 गुना भी हो गए इनके अंदर.
तो ये चारों सेक्टर्स अभी अपना एक रन जो है, जो कि इंटरमीडिएट रन है, वो पूरा कर चुके हैं अपना। अभी हमें जैसा लग रहा है कि ये जो रैली है वर्ल्ड के अंदर पूरी ग्लोबल स्टॉक मार्केट में, ये फेड ड्रिवन रैली है, यूएस सेंट्रल बैंक ड्रिवन रैली है। और जब तक यूएस फेड इस टैप को बंद नहीं करेगा जो उसने नल खोल रखा है अभी, तब तक ये रैली रुकेगी नहीं। आई विल गिव यू वन मोर फैक्ट। अगर आप जाएं आज जापान की स्टॉक मार्केट में, तो आज सेंट्रल बैंक ऑफ जापान 80% स्टॉक मार्केट का होल्ड करता है। तो अगर एक बैंक, सेंट्रल बैंक, जिसके पास मनी प्रिंटिंग की पावर अनलिमिटेड है, अगर वो ही स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करे या जंक बॉन्ड में इन्वेस्ट करे, तो उसका वैल्यूएशन का कोई सानी नहीं रह जाता या कोई पैरामीटर नहीं रह जाता। यही रीजन है, मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि निफ्टी की पी जो है वो 24-26 हुआ करती थी, जब निफ्टी का प्रॉफिट मार्जिन 29% था 2004 में, और आज वो रिवर्स है। आज प्रॉफिट मार्जिन 9% है, निफ्टी की पी 32 के आसपास है। तो वैल्यूएशन कहीं नहीं है, आप सब कुछ लिक्विडिटी ड्रिवन है, बिकॉज आपकी कॉस्ट ऑफ बोरिंग ऑलमोस्ट जीरो है। तो कीपिंग दैट फैक्टर इन माइंड कि जो चीज चल चुकी है, इट्स अ टाइम कि हम वहां से अभी एग्जिट करें और अंडर वैल्यूड चीजों के अंदर जाएं। ठीक है, अब इसके अंदर हमें 2-3 सेक्टर अभी भी अच्छे लगते हैं। जैसे हमने इन चारों से, ऑटोमोबाइल से हम निकल सकते हैं, आईटी से हम निकल सकते हैं, हम फार्मा से भी अभी निकल सकते हैं, और एक सेक्टर और था जो मैंने बताया आपको, वहां से भी अभी निकल सकते हैं, टेलीकॉम से भी हम निकल सकते हैं। बट अब जो सेक्टर हमें अंडर वैल्यूड लगते हैं, उसमें सबसे पहले आता है इंडियन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। क्योंकि आज अगर कोई भी कंपनी बाहर से इन्वेस्ट करती है, बिकॉज आज जो है लोग बात करते हैं इकोनॉमिक डिस्टेंसिंग फ्रॉम चाइना, जैसे हम सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करते हैं कोविड के अंदर, ऐसी वर्ल्ड की इकोनॉमीज बोल रही हैं दैट वी हैव टू फॉलो सोशल डिस्टेंसिंग विद चाइना। तो उसका एक बेनिफिट हमें आने वाले इस डिकेड में इंडिया के अंदर मिलना चाहिए, एंड अगर हमें उसको कैपिटलाइज करना है, तो आज किसी को भी अगर एक दूसरा हीरो मोटरकॉर्प, एंड इट्स जस्ट एन एग्जांपल बिकॉज आई एम टॉकिंग अबाउट द कंपनी नॉट द स्टॉक प्राइस, राइट। सो अगर ऐसा कोई बिजनेस खड़ा करना है, या एक एनएमडीसी करके एक कंपनी है पीएसयू की, राइट, या अच्छे पीएसयूज में अगर ऐसा एक सेटअप खड़ा करना है, तो उसकी रिप्लेसमेंट वैल्यू ही उनके करंट वैल्यूएशन से 20 टाइम्स ज्यादा है। तो सम पॉइंट ऑफ टाइम मुझे लगता है कि जो ये फॉरेन कैपिटल है, वो जब इंडिया में आएगी, तो जो भी अंडर वैल्यूड सेक्टर्स हैं, उनके अंदर एक बहुत अच्छी तेजी अभी नेक्स्ट फेज में हमें देखने को मिल सकती है। तो उसमें कुछ हद तक हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे हम काफी बुलिश हैं एज ऑन टुडे। जैसे आपने बोला कि मुझे कल खरीदना है, तो मुझे कल मैन्युफैक्चरिंग खरीदना पड़ेगा, मुझे टीसीएस नहीं खरीदना ना रिलायंस खरीदना। चलिए वेरी ऑनेस्ट फ्रॉम दैट एंगल। अगर यही आप मार्च में सवाल करते थे इस मार्च को, तो मेरा आंसर शायद डिफरेंट होते, बिकॉज हम लोग बहुत बिलीव करते हैं कि हमारा एक प्रिंसिपल है, हम लोग थोड़ा न्यू स्कूल ऑफ थॉट है, तो हम लोग सोचते हैं इन्वेस्ट राइटली और स्विच टाइमली। जैसे कंपाउंडिंग 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड है, मेरे हिसाब से हमारे जो ग्रुप की फिलॉसफी है, ये एक 9th वंडर ऑफ द वर्ल्ड है, इन्वेस्ट राइटली स्विच टाइमली। अगर हमने टाइमली स्विच नहीं किया तो पैसे नहीं बनेंगे। तो इट इज अ टाइम टू स्विच फ्रॉम दैट एंगल in undervalued sectors. Okay. Before I go to Sumit, I would request Madhuri or the coordinator to just collect some questions. We'll have time for 3, 4, 5 questions. और अगर स्पेसिफिक किसी किसी पैनलिस्ट को पूछना है, तो वो उस पैनलिस्ट का नाम डाल के मुझे आप डालिए, तो जयेश जी तो वैसे कोऑर्डिनेट कर लेंगे, क्योंकि टाइम बहुत कम है, और जो है हम लोग क्वेश्चन एंड आंसर्स की तैयारी कर लेते हैं। तो यू कैन मीनवाइल collect some questions, and if there is specific to any panelist, then we may take that way as well. Yes, sure. Our backup team is working on it. If there are any questions, we'll surely give you. Till that time, you can continue, sir. Yeah. तो सुमित, हम लोग है ना अमित भाई से थोड़े सेक्टर्स की बात कर रहे थे। उन्होंने कहा आईटी, फार्मा, ये इनके बाय रेडार पे था, और अब ये स्विच कर रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग साइड पे, जहां इनको लगता है कि वैल्यूएशन कंफर्टेबल है, अंडर वैल्यूड है। तो आपके दिमाग में क्या आता है जब मैं मोमेंटम की बात करूं, कि रिटर्न पोटेंशियल की बात करूं, या प्रॉब्ली आज की करंट मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन देख के मैं ये बात करूं कि कौन से सेक्टर्स और कौन से स्टॉक्स आपको अच्छे लगते हैं, कि यहाँ से फ्रॉम द इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि हमने देखा है कि अनलॉक 3 शुरू हो गया है, क्योंकि काफी सारे सेक्टर्स भाग गए हैं, तो वैल्यूएशन, वैल्यू और अर्निंग विजिबिलिटी, ये 3-4 पैरामीटर्स पे आपको कौन से सेक्टर्स और आइडियाज अच्छे लगते हैं यहाँ से? ओके सी यतिन जी, अभी बहुत कुछ मार्केट्स में परफॉर्म होना बाकी है। मार्केट्स हैव ऑलमोस्ट कम नियर लैटम हाई लेवल्स, बट स्टॉक्स हैव नॉट।
कुछ स्टॉक्स की वजह से, कुछ सेक्टर्स की वजह से अभी मार्केट से ऊपर आया और बाकी आवाज आ रही है मेरी क्लियर? हाँ, आ रही है। क्लियर है, कोई या इशू नहीं। सो बाकी सेक्टर्स और स्टॉक्स ने तो अभी परफॉर्म किया ही नहीं है। जैसे अभी अमित जी ने कहा आईटी सेक्टर, बिल्कुल यस एब्सोल्युटली राइट, आईटी सेक्टर टॉप पे चल रहा है। फार्मा सेक्टर ने अच्छा रिकवरी दिखाया लोअर लेवल से। एफएमसीजी हैज गिवन अ गुड मूव फ्रॉम लोअर लेवल्स। बट अगर आप देखिए बैंकिंग किधर चला है? सिलेक्टेड एक दो स्टॉक को अगर आप ले लोगे, उसके अलावा बैंकिंग हैव नॉट हैज स्टार्टेड देयर रैली। अगर बैंकिंग ने रैली स्टार्ट करी तो यहाँ से बहुत बड़ा मूव आएगा। लेट मी टेल यू वन थिंग, अगर आप निफ्टी और बैंक निफ्टी ही दोनों को देखें, निफ्टी इज ट्रेडिंग एट अराउंड 12,000 लेवल्स एंड बैंक निफ्टी 23,000 पे। बैंक निफ्टी का लास्ट टाइम हाई लेवल 32,000 के पास। 10,000 पॉइंट बैंक निफ्टी अभी डिस्काउंट है कंपेयर टू निफ्टी। अभी होना चाहिए था बैंक निफ्टी 30,000 के आसपास, बट बैंक निफ्टी बहुत स्लो चल रहा है बिकॉज ऑफ दिस लॉकडाउन सिचुएशन, बिकॉज ऑफ दिस मोरेटोरियम। जैसे ही थोड़ा सा स्पार्क, थोड़ा सा ट्रिगर बैंकिंग सेक्टर को मिला, बैंकिंग विल ब्लास्ट। ऐसा तेजी आएगा बैंकिंग के अंदर कि हम सोच भी नहीं सकते। हम बैंक निफ्टी के अंदर बहुत बुलिश है। हम सिर्फ ट्रिगर का वेट कर रहे हैं। आप देखिए बैंकिंग और बैंक निफ्टी के अंदर अभी जब मूव आना स्टार्ट होगा तो 1,500 पॉइंट का मूव बैंक निफ्टी में आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। और जो बैंक निफ्टी ने अंडर परफॉर्म किया है वो अभी निफ्टी को आउट परफॉर्म करने वाला है बहुत जल्दी। तो ये देखने की बात है कि कब होता है। मेरे को लग रहा है बहुत जल्दी होने वाला है और बहुत जल्दी ये मूव हमको देखने को मिलेगा। तो मेरी सबको एक सलाह रहेगी, अपने आंखें और कान एकदम खुला रखें और बैंकिंग सेक्टर को वॉच करें। पीएसयू तो ना के बराबर चले हैं। प्राइवेट बैंकिंग स्टॉक्स में वी हैव सीन सम गुड परफॉर्मेंस इन फ्यू ऑफ द प्राइवेट बैंकिंग स्टॉक्स, बट अभी तक प्राइवेट बैंकिंग स्टॉक्स में भी कुछ रैली देखने को मिला नहीं है। सो दिस सेक्टर इज गोइंग टू परफॉर्म। सीमेंट सेक्टर जैसे ही इकोनॉमी पूरी आएगी लेवल पे, सीमेंट सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मेटल, ये सेक्टर पूरा एक अच्छा खासा तेजी पकड़ने वाला है। जस्ट कीप योर आईज ओपन ऑन ऑल दिस सेक्टर। सीमेंट यहाँ से रैली करने में बहुत बढ़िया रैली दिखाएगा। मेटल यहाँ से रैली करने में बहुत बढ़िया रैली दिखाएगा। इंफ्रा के अंदर मूव देखने को मिलेगा। जस्ट लुक एट दी अंबुजा सीमेंट, अल्ट्राटेक सीमेंट, ACC, Heidelberg, Grasim. These stocks will perform in next couple of weeks, in next couple of months. Apart from this, जैसे ही मेटल में अभी देखिए कल पहला दिन था जब मेटल में वी हैव सीन दी मूव लोअर लेवल से। नो डाउट स्टॉक्स में अच्छी रैली आई है, बट फ्रॉम हियर ऑन मेटल्स विल आउट परफॉर्म। मेटल्स के अंदर ब्रेकआउट आने ही वाला है और मेटल सेक्टर यहाँ से एक बहुत बढ़िया मूव दिखाएगा। तो ये एक एक सेक्टर करके जैसे जैसे आ रहे हैं वैसे ये सीन हो रहा है कि इकोनॉमी के अंदर रिवाइवल आ रहा है। इकोनॉमी के अंदर रिवाइवल आया तो ये सेक्टर्स का मूव दिखा रहे हैं कि इकोनॉमी के अंदर चीजें रिवाइव होने वाली है। और जैसे ये चीजें रिवाइव होगी तो ये सब सेक्टर के अंदर बहुत बढ़िया मूव देखने को मिलेगा। So I think those who are investing in the markets, those who are trading in the markets, investing and trading both are different things. Trading के अंदर you should trade with stop loss. Never ever trade without stop loss. And when it comes to investing, select quality stocks, select blue chip stocks, select good companies. ये जो मैं सेक्टर्स के नाम दे रहा हूँ, मैं स्टॉप लॉस और टारगेट नहीं दूंगा बिकॉज 600 से आसपास ऑडियंस यहाँ पे अवेलेबल है। इस फोरम पे पब्लिक सेशन में स्टॉक स्पेसिफिक लेवल देना सही नहीं होगा, बट सेक्टर से नाम मैंने कहे हैं। आप लोग वॉच कीजिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से टच में रहिए और इन स्टॉक्स के अंदर जब भी आपको टाइमिंग मिलता है यू ट्रेड एंड इन्वेस्ट इन these sectors, these stocks, banking, metal, financial, auto, steel, ये सब के अंदर एक अच्छा मूव आएगा यहाँ। ठीक है। और बिफोर आई स्टार्ट द Q&A सेशन, क्योंकि सुमित ने कहा कि बैंकिंग बढ़ जाएगा और अमन भाई से क्वेश्चन मुझे पूछना पड़ेगा क्योंकि ये पूरा दिन आरबीआई गवर्नर के साथ हॉटलाइन पे होते हैं और आरबीआई को एडवाइस करते हैं। तो अमन भाई आप मना कर रहे हैं, लेकिन आप बताइए कि बैंकिंग के लिए क्या ट्रिगर होगा, क्योंकि यू हैव अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस इन द बैंकिंग वर्ल्ड, कॉर्पोरेट बैंकिंग यू हैव डन फॉर मेनी इयर्स। तो ये क्रेडिट पिकअप, क्रेडिट ऑफटेक, एसेट क्वालिटी साइकिल का जो अभी ट्रेंड है, बैंकिंग आपको कैसे लगता है? आपका क्या थॉट प्रोसेस है कि व्हाट आर द राइट थिंग्स द आरबीआई इज डूइंग एट दिस पॉइंट इन टाइम? और इकोनॉमी साइड से हाउ इज द थिंग्स लुकिंग? आर दे लुकिंग अप फ्रॉम हियर?
मैं इसको दो पार्ट में बताता हूँ, क्योंकि मेरे को लगता है कि हम सारे इतने बुलिश हैं, ये सारे 500 550 लोग घर जाके सीधा पहले खरीदना ना शुरू कर दें मंडे से, तो बाइंग। तो ये सुमित भाई और अमित भाई, आलोक भाई, ये सब, ये जयेश काला जी पकड़ 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 के हम सारों को फोन करे, अरे भैया ये सारों ने बवाल मचा दिया, मार्केट में खरीदना शुरू कर दिया है। तो अमित भाई, अमन भाई, ये जो चार्टर्ड अकाउंटेंट कम्युनिटी है ना, बहुत स्मार्ट कम्युनिटी है, क्योंकि राकेश झुनझुनवाला एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है और उनका एक फेमस कोट है कि इफ द गर्ल इज प्रीटी सूटर विल कम, so if stock is good and if the stock market is good, will go and buy. और रामदेव अग्रवाल भी चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उनका भी एक ही इज अ परपेचुअल बुल। तो ये कंट्री के जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है ना, बहुत स्मार्ट है और बहुत ज्यादा पैसा बनाते हैं स्टॉक मार्केट में। करेक्ट। मैं इसको दो फेज में बांटता हूँ इस बात को। पहले फेज में जो आरबीआई के पर्सपेक्टिव से मैं थोड़ा जिक्र करता हूँ कि आरबीआई इसको कहाँ से देख रही है, और आरबीआई में लेटेस्ट अभी जो सी चेंज है, की चेंज है जो देखने को मिल रहा है, जो कि इम्पैक्ट करेगा। सबसे पहले तो हमें ये समझना जरूरी है दैट आरबीआई व्हाइल इट वाज रिड्यूसिंग द इंटरेस्ट रेट्स, इट डज नॉट मीन दैट चीप बोरोइंग्स वर अवेलेबल। हमें ये जानना बहुत जरूरी है, बिकॉज रेपो रेट से इंटरेस्ट रेट जो पूरा पास ऑन होता है, रिडक्शन पास ऑन होता है, वो इंटरेस्ट रेट रेपो से नहीं होता। एंड फॉर दैट मैटर मैं यहाँ पे थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ कि रेपो इज नॉर्मली फॉर अ पीरियड ऑफ 14 डेज, ऑल्दो ये आरबीआई ने अच्छा स्टेप निकाला जो 3 इयर्स का एलटीआरओ निकाल दिया, लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन, जो कि 3 इयर्स के लिए लिमिटेड अमाउंट में भी 1.2 लाख करोड़ पहले निकाला, फिर उसके बाद फिर 1 लाख करोड़ निकाला, अभी फिर 1 लाख करोड़ निकाला है। अब इसका मतलब ये है कि कभी भी हम ये ना सोचें कि आरबीआई रेट कट कर रहा है तो फटाफट खरीदना शुरू कर दो क्योंकि चीप बोरोइंग्स हो गए। सेकेंड पॉइंट ये है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको बहुत पैसा चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट को बहुत पैसा चाहिए इस टाइम पे, पीएसयूज को बहुत पैसा चाहिए, कॉर्पोरेट्स को पैसा चाहिए, म्यूचुअल फंड्स को पैसा चाहिए जो ऑलरेडी डेट साइड पे एक्सपोज्ड है, माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को पैसा चाहिए जो ऑलरेडी एक्सपोज्ड है, पावर कंपनीज, पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को पैसा चाहिए, एनबीएफसीज को पैसा चाहिए। जिसके लिए पॉइंट ये है कि over a period of time RBI is trying to not to concentrate only on repo but to concentrate on bringing the yield down on bond. So that means what RBI is trying to bring down is yield on the bond. So it is very important for us to understand that while we all believe that if the repo rate comes down, the yield also comes down. No, yield on a bond is a function of various factors which include, can be a credit rating of India, it can be maybe a default spread होने के chances क्या हैं, इट कैन बी मे बी क्रेडिट स्प्रेड क्या है एक तरह से देश का या उस कॉर्पोरेट का। मैं उस टेक्निकल जार्गन में नहीं जा रहा, बट मैं इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि आरबीआई को जब हम ये सोचते हैं कि जी इंटरेस्ट रेट नहीं घटाया, आई एम सॉरी शायद किसी का अनम्यूट है तो मेरे को लगता है वहां से कुछ खड़खड़ की आवाज आ रही है कहीं से। सो आरबीआई जहां पे रेट कट नहीं कर रही, इट डज नॉट मीन दैट आरबीआई इज नॉट डूइंग एनीथिंग। सबसे पहला पॉइंट जो अभी लेटेस्ट जो हमें चेंज दिखा वो पहला 5:1 की वोटिंग हुई थी इस बार, जिसमें आरबीआई ने डिसाइड किया दैट विल स्टिल होल्ड द रेट कट, विल नॉट डू द फर्दर रेट कट, बट हम बॉन्ड्स की यील्ड की कैपिंग करेंगे, यानी कि हम गवर्नमेंट के बॉन्ड का जो यील्ड है वो बढ़ने नहीं देंगे। दैट्स अ बिग साइन। गवर्नमेंट के बॉन्ड को अगर यील्ड को बढ़ने नहीं दिया जाएगा, इसका मतलब यील्ड को कैप किया जाएगा, इसका मतलब आरबीआई कहीं ना कहीं और फर्दर बॉन्ड्स खरीदने को तैयार है गवर्नमेंट के लिए। इसका इनडायरेक्ट कनेक्शन मैं यूं बताना चाहता हूं कि इसका मतलब ये, गवर्नमेंट को पैसा चाहिए फिस्कल स्टिमुलस के लिए, फिस्कल पंपिंग के लिए। गवर्नमेंट कहां से लाएगी पैसा? तो गवर्नमेंट बॉन्ड इशू करेगी, बॉन्ड इशू करेगी, पब्लिक तो खरीदता नहीं। पब्लिक कहता है भाई साहब बॉन्ड खरीद के मैं कहां बेचने जाऊं, अगर मेरे को कल को शादी करनी है, कहीं पे घूमने जाना है, मैं कहां बॉन्ड में तो लेके थोड़ा ना बैठा रहूंगा 5-10 साल के लिए। सो अल्टीमेटली गवर्नमेंट कहती है कि आरबीआई भाई तू खरीद। इसको मोटा मोटा आप यूं समझ सकते हैं एक तरह से मोनेटाइजेशन हो रहा है, मतलब हालांकि मैं उसको वर्ड को यूज नहीं करना चाहता, बट ये मोनेटाइजेशन ही है, क्योंकि जिसको हम ओपन मार्केट ऑपरेशंस बोलते हैं, आरबीआई चाहे तो मार्केट से बॉन्ड खरीद ले, समझो किसी म्यूचुअल फंड या किसी माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या एनबीएफसी ने गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज खरीदे और वो कह रहे मेरे को बेचना है क्योंकि मेरे को पैसे की जरूरत है, और आरबीआई कहता है आओ मेरे को बेच दो मैं खरीद लेता हूं। एक तो वो ओएमओ हो गया, वो तो आरबीआई कर ही रहा है, मगर आरबीआई साथ में सेंट्रल गवर्नमेंट को डायरेक्टली कह रहा है कि आप अपने बॉन्ड्स मेरे को दे दो, मैं आपके बॉन्ड्स खरीदता हूं, कोई इशू नहीं है, मैं आपको एक तरह से मैं बोलना नहीं चाहता मगर पंप ही तो है पैसा, और क्या चाहते हो। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, पहली बार आरबीआई के गवर्नर साहब ने कहा स्टेट गवर्नमेंट्स को पैसे की जरूरत है, और ये हम सब जानते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को जीएसटी का रिफंड नहीं दे पाई है जो उनको ड्यू था,
94,000 crore ka 94,000 crore, and that's why the state government are also looking for a lot of money amount, and that's why RBI said no worries, you issue your own bonds which is known as state development loans, and I'll subscribe to those state development loans. This is a big sign that shows a lot of confidence, क्योंकि इसके कारण जो भी जैसे LIC है, LIC का बहुत ज्यादा एक्सपोजर स्टेट गवर्नमेंट के बॉन्ड्स या स्टेट डेवलपमेंट लोन्स के ऊपर होता है। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या स्टेट गवर्नमेंट के अगर बॉन्ड्स RBI खरीदता है तो उसके बॉन्ड्स के ऊपर प्रेशर कम होता है, which gives a soothing effect to LIC, a lot of mutual funds जो डेट फंड्स हैं, जो म्यूचुअल फंड्स जो हम बोलते भी हैं। एंड साथ में फोर्थ पॉइंट, स्पेसिफाइड सेक्टर्स के लिए LTROs का अनाउंस किया, स्पेसिफाइड सेक्टर, और यहां पे मैं बोलना चाहता हूं स्पेसिफाइड वाज रियल एस्टेट एंड रिटेल, एंड साथ में उसके साथ ये भी बोला गया कि हम उनके ऊपर जो रिस्क वेटेज है वो कम करेंगे, कम कर रहे हैं। और साथ में यहाँ पे कहने वाला पॉइंट ये है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, RBI हैज बीन ट्राइंग टू डू एन ऑपरेशन विच इज नोन एज ऑपरेशन ट्विस्ट। क्या होता है, रेपो रेट से हम नॉर्मली बहुत शॉर्टर पीरियड टर्म का हम नॉर्मली यील्ड तोड़ने की कोशिश करते हैं, हालांकि वो होता नहीं है, जो कि मैंने अभी एक्सप्लेन किया। मगर कॉर्पोरेट ने जो 10 साल का लोन लिया हुआ है या जो 20 साल का लोन लिया हुआ है, उसके लिए आई नीड टू हिट ऑन द लॉन्गर पीरियड टेनोर ऑफ द बॉन्ड्स। दैट मीन्स RBI is wanting to buy the bonds of longer period, so that if I buy the bonds of longer period, the yield will come down of longer period. That means the interest rate of a longer period will fall, and that is very, very important step which RBI has started to take, which is known as Operation Twist. ये एक भाग था जो मैं कहने की कोशिश कर रहा था। जो दूसरा भाग है, ऑन अ लाइटर नोट, मैं यहाँ पे ऐसा भी कहना चाहता हूँ, एज आई वाज मेंशनिंग, कि हम सब बुलिश हैं, अमित भाई बहुत बुलिश हैं, आलोक भाई बुलिश है, सुमित भाई बहुत बुलिश है, एंड बहुत राइटली सेड, अमित भाई ने भी बहुत बढ़िया बोला, आलोक जी ने भी बोला मोमेंटम, ये मोमेंटम, अमित जी ने बोला कि राइट टाइम, एंड उन्होंने एक बहुत अच्छा वर्ड भी यूज किया कि उसको राइट टाइम पे लगा के और फिर निकलना। इसका मतलब क्या है, यू नीड टू चर्न, क्योंकि यहाँ पे मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहता हूँ। 1992 से लेके 2004 में द मार्केट वाज फ्लैट, and we saw the starting with the Harshad Mehta and then the Ketan Parekh wo jo scam ke karan wo 1992 mein the Sensex was almost say 4,000, and in 2003-4 January it was around 5,000 6,000, and वहां 6,000 से जो 22,000 का level आया January 2008, that was majorly because of lot of pumping of money and not the real money coming from the RBI. It was more towards the P notes, participatory notes के through, जो यहाँ का जो वो कौन सा वाला पैसा, मैं नाम नहीं लेना चाहता यहाँ पे, वो वाला पैसा P नोट्स के थ्रू इंडिया में रूट हुआ, एंड उसके कारण मल्टीपल ग्रोथ मिली। रियल एस्टेट 250%, 250%, एंड गोल्ड 250%, इक्विटी फ्रॉम 6,000 to 22,000, and इसीलिए anyone who would have invested before 2004, he would have made money, and that's why we say that you should be investing for a longer period of time. But longer period of time was before 2008 and not after 2008, क्योंकि after 2008 you need to be moving, you need to be churning, and उसके लिए I think it is very important message जो अमित जी और सुमित भाई और आलोक भाई ने बताया, and जो कि ऑडियंस को समझना बहुत जरूरी है कि ऐसा गलती ना करें कि आप पैसा लगा के सो जाएं, क्योंकि अगर आपको ये लगता है कि मैं लॉन्ग टर्म लगाऊंगा, लॉन्ग टर्म का जो कहानी है वो 2008 से पहले की थी। राइट टाइम, एंट्री एग्जिट वो हम डिपिक्ट नहीं कर सकते, बॉटम पीक नहीं डिपिक्ट कर सकते, बट दैट्स व्हाई वी से पहले मार्केट गवर्न करती थी ब्रोकर्स द्वारा, अब गवर्न करेगी एडवाइजर्स द्वारा। सो यू हैव टू बी चेंजिंग योर माइंडसेट। पहले हम ब्रोकरेज देने के लिए खुश होते थे ना, हम कहते ब्रोकरेज ले, मेरे को यार धंधा करना है। अब आपको एडवाइजर को एडवाइजरी फीस देनी पड़ेगी और देनी चाहिए, एंड अगर आपको लगता है कि राइट एडवाइजर आपको मिल गया है, उसको एडवाइजरी फीस दो, उससे मोमेंटम, चर्निंग जो भी आप लीजिए, क्योंकि अगर आप लॉन्ग टर्म या ब्रोकर ड्रिवन मार्केट में रहेंगे तो ये भी एक ट्रेंड है जो चेंज हो रहा है, जिसको आपको आज पहचानना है। थैंक यू अमन भाई फॉर दोज वर्ड्स ऑफ विजडम, एंड थैंक यू ऑल द पैनलिस्ट। तो शुरू करते हैं Q&A सेशन। Yes, we have certain questions in place. Mishra ji, could you please put up the questions? Yes, Yatin ji, you can start and can ask any of the panelists to answer it. So the first
question is about REITs. A very interesting question because we have seen a lot of changes happen in the real estate market after we have some relaxation of norms with respect to REITs, which is real estate investment trusts. So, any thoughts on REIT? If any of the panelists would like to talk about this, Aman bhai, if you can talk about REITs. Sure. I think, see, REIT is a new age. Shukar hai, yahan pe the question was about REIT. It could have been maybe about the cryptocurrency as well, because many chartered accountants would have definitely invested into Bitcoins because that was the age. And no, don't worry, Mr. Chug, we have question on cryptocurrency also. Acha, wo bhi hai kya? That's why. Okay. So particularly on REIT, the Indian REIT industry is yet to grow. We have only seen one of the REIT getting listed in the name of Embassy, and $60 billion of a fund is being planned by Goldman Sachs coming into India. So I have been interacting with some of the senior people of Goldman Sachs and Citco, which are the global administrator of a lot of funds coming into alternative investments. So yes, REIT is the new age thing, but mujhe lagta hai, in my personal opinion, it is right now too early to jump into one or two REITs which have got listed. So maybe you should spend some time so that the market let it open by, and then maybe you should start taking exposure as a part of your portfolio. So when I say as a part of a portfolio, most of us, we normally concentrate either on real estate or equity or only mutual fund. I think as a part of the overall portfolio, you can take a chunk of REIT as a part of overall portfolio by managing your Sharpe ratio and beta hedging as well. Okay. और एक question काफी interesting है, and I thought we would get this question. I was expecting this, that why do international developments result in volatility of Indian markets? When Trump tweets, the market shivers or the market moves up. Obviously, what we look at is the global scenario, because fund flows are global. US presidential elections, probably the India-China, kind of a situation at the border. Why is dollar rate so important? So the question really is that why are external factors, really impacting the Indian markets, and how should one look at Amit, if you can take up this question. I think that's true because am I audible? Yeah. Yes. Yeah. So I think that's true. I think a lot of factors are going to decide the market direction across any asset class for that matter. Because as we discussed that because of this modern financial system, everything is liquidity driven today. And whenever you get a liquidity, just to give an example, we tried to cover up earlier as well, that US has printed $4 trillion in last 6 months. And it is almost 140% of India's GDP. तो इंडिया को जो क्रिएट करने में इंडिपेंडेंस के बाद करीबन लगभग 80 साल लगे, वो यूएस ने 7 महीने में क्रिएट कर दिया. That's a power of liquidity we are talking about, right? So if the liquidity comes, of course, any asset price will go up, and it is going to be correlated. However, if we have a World War III, because the US dominance started after World War II, Britain Woods Agreement. If we have a World War III, then you will find the world is going to get fragmented, and no one is going to have excessive power. And that excessive power I'm talking about today. There are two excessive power in the world today. So the 40% of the manufacturing happen in China. However, on the other side, 80 or 90% of the global trade happen in dollar. This is the problem with the world, and this is what creating a geopolitical tension in the world today, not COVID-19 for sure, because the world is already passing through a much bigger pandemic from 1980s. COVID-19 has come now, and that pandemic is global debt, that we start living on EMI culture from 1980s and started from US, and now entire world is in this grip. And this is going to only break once we have probably a situation like World War III. If we have it, then the things will change. Otherwise, we are going to be in a routine scenario that all asset price will go inflated. Rate of interest is going to go further down because the global economies has a debt of $270 trillion. If they raise rate of interest from here on, even the economies will not sustain that rate of interest and they'll go for bankruptcy, not only corporates. So they don't have an option. So rate of interest is going to remain low for a tangible period of time unless we have some geopolitical tension in the world. So all asset class will get inflated because of this easy liquidity of the money. That's a very, very broad view. On global market, it depends that
which country you are part of, and which asset class do you invest in. As I said, 1981 was a good investment in US dollar. वो $1 का भाव 10 रुपया था, अभी 75 रुपया है, 750% रिटर्न आ गया आपका केवल आपके गोल्ड डॉलर के अंदर, बिकॉज दैट्स आल्सो एन एसेट क्लास. यूएस बॉन्ड के अंदर इन्वेस्ट किया होता उस वक्त बहुत अच्छा था, पर आज के टाइम में अच्छा नहीं है. डिपेंड करता है आप कौन सी कंट्री में है और किस टाइम में आप एंट्री या एग्जिट करते हैं. ये दो चीजें अगर आपको क्लियर है तो आई थिंक यू कैन मेक मनी. एंड आई थिंक अगेन आई फॉलो आवर प्रिंसिपल. What we advise: invest rightly, switch timely, and trust me, it is a ninth wonder of the world if you do it holistically in a way, the way we think it or the way we believe it. Okay. Alok, Alok, can I elaborate on this question further on the developments? Right. Sorry. Please. Slightly, maybe I'd like to add on that. See, market and economy, these are two different things. Economies run on fundamental data releases, and market run on liquidity and greed and fear index. Like presently today, the greed and fear index is at 62. So liquidity is driven by the RBI and the FOMC, etc. But the greed and fear is driven by different news and rumors. As Yatin Bhai was pointing out that maybe Trump tweeting over tweet, and suddenly after 3 hours he says, no, I did not mean this way, and I meant the other way around. So he must have made quite a good amount of money, I would put it this way. So यहाँ पे हमें as a audience आपको समझना ये जरूरी है that the whole of the market is run by derivatives. So when I say derivatives, I mean to say the speculative part of the derivatives. So let me put it this way: the world global GDP is approximately 80 to 90 trillion dollars, but annually, every year. So when I say every year, the world global GDP is around 80 to 90 trillion dollars. Every year, the world has got approximately 1,700 trillion dollars of derivatives traded. Out of this 1,700 trillion dollars of derivatives, 90% is traded by currency and interest rate derivatives. And that means if the actual GDP is $80 trillion, how can there be 20 times or even 15 times of derivatives? That simply shows that the 14 times of the world's GDP is nothing but the speculation. So that means every time and there, whenever there is a news or whenever there is a rumor, there is someone who is playing on those underlying. So if US presidential election, उसके ऊपर भी कोई ना कोई सट्टा मार रहा है, हो सकता है you would not be surprised, I would not be surprised, सबसे ज्यादा ट्रम्प साहब और बिदेन साहब ही मार रहे हो. And for that matter, you can check the data. The kind of amassing of the wealth which Mr. Trump has made in the last 4 years has been phenomenal, and thanks to Twitter. और मैं यहाँ पे ये भी कहना चाहता हूँ, elections would not be won by the local state of ground. It will be won on Twitter and Facebook. I think Mark Zuckerberg को already पता होगा election किस तरफ जा रहा है. And maybe ये दोनों जो leaders हैं उस तरफ जाना चाहते हैं कि भैया Mark Zuckerberg बताओ हम कैसे focus करें. And similarly, tensions between India, China, US, China, or any sort of rumor or news coming into the market triggers various people who want to take speculative positions. Those speculative positions are done through derivatives, and that's why derivatives जो है वो world की GDP का हर underlying को impact करता है, and that is very important for us to understand here this point.